में बना दूसरा सिनेमा। ये बकवास करता रहता है, आके इसकी सुनते रहो यार, हर वक्त घोड़े की तरह बकवास करता ठीक हो गया। हनाता रहता है जिधर जाता। ਹੁਣ ਚੁੱਪ कर जोगे। इसके मुंह में कभी भी कोई सही बात नहीं आई है। ओहो वैसे ही ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ वैसे ਵੀ हफीज भाई वैसे ही ना नानी की ਹੁਣ आवाज ਸਮੀउल्ला तो नवीद भाई को बहुत अच्छी लगती होगी। कलीमुल्ला तो बाद ਸਮੀउल्ला अमर भाई मेरा सवाल है मैं तो सारा आमिर नजीर साहब बात ले नाटक वाली हो ना, ले सिर्फ भाई आपका हारून मकसद रशीद हो भी कि ਇੱਥੇ बदनाम करना है, हसन सरदार भी अगले को ਇੱਥੇ बदनाम करना मकसद है बस। सिनेमा जाते थे, थिएटर जाते थे, जैसे हमारा अच्छा शियों का कंजर खाना लाहौर में चलता है ना, अच्छा मतलब अच्छा अपने एक उधर मिनट वो जो बिल्कुल तुसी उसी तरह होते थे। हफीज शेख कंजर साहब खाना हफीज तो शेख सबूत ने साहब खोला हुआ है जहाँ पे लड़कियों को चलाती है। ओ एक मिनट चुप कर ਹੁਣ तक काम होने लगा है। साहब ने भी कंजर खाना खोला हुआ ओ था। शार्प शूटर चुप कर जा मैं वेखी तो सही जे तेरा दिल ना ठंडा होया ते तां मैनू आखी म्यूट रखा सबर रखा फिर वो मुर्शद आ गए ने दिल इन फटा कर। अल्लाह इन अल्लाह मा साबिरीन अल्लाह सबर करने वाले दे नाल हुंदा सबर करके ते वेख भला ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ हफीज शेख साहब ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ हफीज ਸਿਰਫ शेख ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, हफीज ਸਿਰਫ शेख ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ साहब ਖਿਲਾਫ, हफीज शेख साहब ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ अच्छा ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ गल ਸਮਝੌਤਾ सुनो ना ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ गल ਨਾਉਜ਼ੁबिल्ला तो ਉਮਰ सुन ਨੂੰ लो ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। तुसी मरजाई है तुसी मरजाई हो ना म्यूट करो यार फीस ਮਰਜ਼ਈ ਅਹਿਮਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ तुसी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹੋ, अच्छा ਕੋਈ गल ਗੱਲ तो ਨਹੀਂ। सुन लो ए गलत ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ गलत ਕਬੂਲ गल ਹੈ, है ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ यार ਲਓ, गलत ਸਾਨੂੰ गल ਕਬੂਲ कर ਹੈ। रहे हो तुसी ਚਲੋ ओ यार ਹੁਣ गलत ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ तुसी ਅਗਲੇ गलत ਦੀ ਵੀ गल ਗੱਲ कर रहे ਸੁਣ हो ਲਵੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ओ ਘਰ क्यों ਆ ਕੇ म्यूट करना ਬੋਲੀ यार ਜਾਂਦੇ ਹੋ क्यों म्यूट ਬੋਲੀ करना ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ क्यों ਪੁੱਤਰ ਨੇ, बोल लें ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? बोल लें चुप करो एक मिनट चुप करो शेख साहब मेरा एक सवाल है मासूमाना तुसी ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਵੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਮਦੀਨ 700 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹ 700 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਸ਼ ਦੇ ਯੁਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਥੋੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਵੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਲਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 1896 ਚ ਬੰਬਈ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੇ ਫੈਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 1908 ਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, 1896 ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਆਂਡਿਆ। ਉਹ 1908 ਚ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਜਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣ ਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਯਾਰ? ਕੌਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਗਵੇੜ ਨਾਲ, ਕਿਆਸ ਨਾਲ, ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ 1864 ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਮਾਮਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਲਮਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਾਲਮਕ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਦੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈ, 28-29 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਮਦੀਨ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਚੋਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 1864 ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੇ 1864 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਦੀ ਉਰਦੂ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਬਈ ਉਹ 700 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਜੀ 700 ਇਸੀ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ है। वो 700 रुपया आज तक। नजीर साहब, आपने ये जो सवाल किया कि जी उस वक्त अयाशी के कौन कौन से जराए थे, एक बात मुझे बताएं कि अगर चलो मेरी मिसाल ले लो यार, मैंने अपने बाप की पेंशन चोरी कर ली, मेरे पास 700 रुपया आ गया, अब जरूरी है कि मैं बदकारी की तरफ जाऊंगा, औरतों के पास जाऊंगा, सिनेमा में जाऊंगा? हो सकता है मेरे और कोई और शौक हो, मैं खा पी के खत्म कर दूं। जरूरी तो नहीं है कि मैं जाऊंगा शराब खरीदूंगा और जना करूंगा, हीरा मंडी जाऊंगा, में जाऊंगा, थिएटर जाऊंगा। ये आपने कहां से निकाली है? हाँ, मैं अर्ज करना, जे मैं उन्हां दा जना दा इल्जाम लावां, जे मैं सिनेमा दा इल्जाम लावां, जे मैं थिएटर दा इल्जाम लावां, ते तुसीं मेरे गल च कपड़ा पा के खिंचिया जे। मैं तुहानूं सर मुनसफ बना के पुछण लगा वां कि पहलां वो 700 रुपये दी जिहड़ी अमाउंट है उहनूं एवैल्यूएट कर दिओ कि उहदी अज दी तारीख विच वैल्यू कितनी बनती है। फिर देखने कि बई वो पैसे अगर बंदा उस दौर च खान लगे, होटल च खाए तो माम ते नहाए, तो किन्ने दिनों खत्म होंदे ने। अगर कोई बदकारी ना करे, 125 तो खरीदने वास्ते ही है नहीं सी, BMW तो होंदी कोई नहीं सी, घोड़ा इन्हां को नहीं खरीदिया, टांगा इन्हां को नहीं खरीदिया, सैर सपाटे या किराए ते लाए ने या खाण पीण ते लाए ने या किसी होर किसी जगह ते लाए ने, उहदा अज फैसला करने तुहाडे कोल करवाने फैसला। तुसीं पहलां ओहदी एवैल्यूएट करो भी 700 रुपये की जिहड़ी वैल्यू है कि मैं ओहदा कोई, मैं आमर नजीर आ कि वो पैसे किथे कड्डे, किथे लगे, किथे किथे गए, किथों चाह पीती, किथों रोटी खाधी, मेरे कोल कोई नहीं होता। वो जो होया वो कहानी जो भी है, बहरहाल कोई चोरी चूरी नहीं की किसी किस्म की भी, समझ गए ना? खा पी ले भाईजान असि कोई लफज पैसे मैं आके खा पी ले, मैनू कौन कहे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਓ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਨਾ ਦਾ, ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ पे ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ पे ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਚੱਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮਾਮਦੀ ਨਾਲ 700 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਨਾ ਦਾ, मैं क्या सिनेमे का कोई लफज मेरे मुंह च सुनिया जे? मैं तुहानू मुनसब बना के तुहाडे कोल पुछण लगा कि तुसी अपने इंसाफ नाल बंदा परवर मुनसफी करना, खुदा को देख कर, मेरे दिल को देख कर, मेरी वफा को देख कर। मैं एक लफज भी कोलों मैं नहीं बोलांगा, तुहाडे कोल इंसाफ कराने। 700 रुपया मैनू नहीं पता, तुसी अकबर साहब आ गए ने, इन्हां नू पुछो या अपना टाक मास्टर, मैनू पता ही नहीं, मैं पहले ही कह रहा था। तो मुझे इस कहानी की फर्दर तफसील नहीं पता कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ और वो क्या नहीं हुआ, वो मुझे अच्छा नहीं। वो पीर अस्कानी भाई कोई बात करना चाहते हैं उनके साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा ये भी ख्याल रखिए कि हम भी मौजूद हैं, थोड़े थोड़े कभी कभी बात करने का मौका दीजिए। अभी तो जहां से बात शुरू हुई है ना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, अभी तो बात वहां पर रुकी हुई। अगर बात आगे बढ़ेगी, बात आगे चलेगी और आपको मौका नहीं मिलेगा तो आपका शिकवा होगा। अभी तो बात चली ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुई, वो आगे कदम उठा ही नहीं रहे। मैं तो उनको मुनसब बना के उनसे पूछ रहा हूँ कि हफीज शेख साहब खुदा के लिए। उससे पहले मैं आपको मुनसब बनाना चाहता हूँ ना भाई। अच्छा ठीक, क्योंकि मेरा काम है कि आप मेरे बड़े हैं, भाई हैं, पहले आपके इंसाफ को देखकर आगे चलूंगा ना, और मुझे उम्मीद है आप इस इंसाफ करते हैं। बात यहाँ पे शुरू हुई। पीर साहब आपसे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। अच्छा, मैं भूल गया था। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मिर्जा जी
सिनेमा जाते थे। नवीद साहब ने कहा, बताइए ये बात दुरुस्त है? नहीं, सिनेमा तो होता ही नहीं था। थिएटर मिर्जा साहब ने खुद लिखा हुआ है, उनके बेटे ने लिखा हुआ है कि थिएटर वो देखा उन्होंने। थिएटर जाते थे? हाँ हाँ, थिएटर देखा हुआ है। अब नहीं पता एक दफा गए हैं, कितनी दफा के गए बेटे हैं। की बात जो है वो आस्ते कुरान है। मिर्जा साहब ने सारी बातें बेटे को ही बताई हैं। फिर इसका मतलब है वो सिनेमा जाते थे। हाँ, उस जमाने में सिनेमा जो है ना, आज का जो सिनेमा है, इसकी भी देखें हुई है, तजदीद हुई है। सिनेमा की भी जो शक्ल है ना, वो तब्दील हुई है। पहले वो एक कच्ची टाकी बोला करते थे उसको, वो भाई बात ये है कि जाते थे ना, ये बात साबित है कि जाते थे। नहीं साबित, इसलिए कि मिर्जा साहब का इल्हाम है कि मेरा कुंबा खबासत की तरफ लौट जाएगा। ये खबीस औलाद के कोई रेफरेंस नहीं माने जाएंगे। भाई आप ना माने, आप ना माने। अकबर साहब उनकी बात चल रही है, आप 2 मिनट वेट करने जरा। आमिर भाई मुझे ये बताइए कि ये बात साबित है कि जाते थे ना थिएटर? हाँ हाँ, पीर साहब, अगर मिर्जा बशीरुद्दीन साहब की हर बात माननी है ना, इन्होंने बात करने दीजिए ना, थोड़ा एक बात मुझे सेकंड, करो। अगर इन्होंने मिर्जा भाई, बशीरुद्दीन साहब की हर प्लीज, बात माननी है तो ये भी मान लें कि वो भाई। नबी थे। मिर्जा बशीरुद्दीन आपसे महमूद ने अगर कहा, झगड़ा करेंगे आप कोई हल नहीं करेंगे। ये बात भी मान ली जाए कि वो थोड़ा नबी थे, सब्र क्योंकि कीजिए, मिर्जा बशीरुद्दीन झगड़ा मत महमूद ने कीजिए। कहा और वो झूठ नहीं बोलता। आपने लाजमन अपनी बात पूरी करनी होती है। भाई आप आधे घंटे से लगे हुए हैं, आप ना सीधी बात करेंगे, ना सीधा जवाब देंगे, ना बात समझेंगे, ना समझाने देंगे। थोड़ा सब्र कीजिए ना भाई। शेख साहब, झगड़े से कोई बात हल नहीं होता, समझ रहे? अच्छा आमिर भाई ये बताइए कि ये बात जो लिखी हुई है, मिर्जा जी ने खुद लिखी है या ये उनके किसी बेटे और ने? ने लिखी? बेटे ने की है, बेटे। सीरत मेहदी में। हाँ जी, हाँ ठीक है, अब बात आगे कीजिए। अब बात क्लियर है, तो इसका मतलब है अगर कोई कहेगा तो वो कह सकता है कि भाई देखो बेटे ने लिखा है, आप ये शोर करते हैं, गालियां देना शुरू करते हैं, ये तो ठीक नहीं होगा। अब बात कीजिए आगे। देखें, जहाँ तक गवाही की बात है ना, बेटे की गवाही या आपके किसी जो आपकी जमात के अंदर मिर्जा साहब के पैरोकारों के अंदर किसी मुखालिफ की गवाही, वो आपको तस्लीम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये असूल है जो मुखालिफाना गुफ्तगू का या मुनाजराना गुफ्तगू का, कि जो मुखालिफ के घर की गवाही है उसमें से जो उसके लिए मुज़िर है वो कबूल की जाएगी, जो उसके फ़ायदे में है उसको, क्योंकि हम झूठा मानते हैं, हम उसकी अच्छी बात तो नहीं मानेंगे। जो उसके नुकसान में जाएगी हम कहेंगे ये तो आपको तस्लीम होनी चाहिए। ये असूल है। मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊंगा बाद में। अच्छा, आगे बात करते हैं। हफीज़ शेख साहब, मैंने ये पूछा था मोहतरम कि आज के दौर में वो 700 रुपया बनता कितना है, इतना तो बता दें, रकम कितनी बनती है। फिर हम दूसरा देखेंगे कि उस दौर में फ्रूट चाट अवेलेबल थी, दही भल्ले अवेलेबल थे, कोका कोला अवेलेबल था या नहीं था, मतलब ये सारी चीज़ें, वो कढ़ाई मुर्ग पकता था नहीं पकता था, समोसे बनते थे नहीं, कौन सी चीज़ खरीदी जा सकती है उस रकम से, और कितना टाइम उसको इस्तेमाल करें तो वो रकम इस्तेमाल खाने पीने में सर्फ हो सकती है। हम ना जिना की तरफ जा रहे हैं, ना हम किसी पर सैनमे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई उसने कोई BMW खरीदी। मैं कहता हूँ आपसे इंसाफ करवाते हैं, पहले देखते हैं रकम कितनी है, फिर देखते हैं अयाशी के ज़राए कौन से। जी फिर शेख साहब माइक ओपन करें और बताएं कि वो आज के दौर में रकम कितनी है। अगर आज के दौर में वो रकम लेकर बंदा निकले और उसके पास वही ज़राए हों अयाशी के जो उस दौर में थे, तो वो कितने टाइम में रकम को ख़त्म करेगा। 700 रुपये को थोड़ा सा एवेल्यूएट तो कर दें, वो रकम आज बनती कितनी है। उस ज़माने का 1864 में 700 रुपया, आज की कितनी रकम बनती है। शार्प शूटर कट जरा, किन्ने रुपए दा गोश्त सी एक शेर ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਉਸਲੇ ਇੱਕ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ $5 ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ $5 ਕਰੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੋ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹਦਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ? नहीं ਯਾਰ नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। नहीं फिर शेख साहब, यहाँ तुसी मेरी गल सुनो, यहाँ तुसी वैल्यूएट कर दियो रकम नु, यहाँ से खुद करने हैं कोई बंद वे तरला नहीं। ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। यार शार्प शूटर ना फिर थोड़ी लड़ाई हो जाएगी। फिर शेख साहब ਉਹਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ
तो सानू मौका देने ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹਾ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਦੇ 700 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ तो सर जुलझना हलाल है क्या हराम है? ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਯਾਰ ਫੀਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ जुलझना ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 175 ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰਵਾਨੇ ਆ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ, 1864 ਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦਸਾ ਦੱਸੋ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ, ਚੀਫਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਖਰਬ ਅਰਬ ਕਿਤਨੀ ਬਣਦੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰ 175 ਗਾਈਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਆਨੇ ਸਨ ਘੋੜੇ? 175 ਗਾਈਆਂ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ। आमिर साहब ये टोटल पैसे ਸੋਨੇ ਦਾ कितने ਰੇਟ थे? ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸਮਝ नहीं आई 700 बात करो। हाँ जी, टोटल अगर- टोटल रकम 700। उस जमाने की 700 रुपया हिंदुस्तान का 700 रुपया 1864 का। ये 700 रुपए तोला रुपए जी। इतना बड़ा रकम किस तरह मतलब किसी को दी जा सकती है? क्या है ये उनकी पेंशन थी। अच्छा, पेंशन थी कई सालों की, एक शख्स की थी। ये हाँ जी, वो उनके नहीं- दादा की। उनका ना वो गवर्नमेंट की तरफ से, खानदान की थी, उनके खानदान की एक शख्स की हाँ थी। पूरे, हाँ नहीं वजीफा था, पूरे खानदान का वजीफा हाँ, था। ये सब घोड़े के पूजा करने वाले को बताएं कि बाप की नहीं थी, दादे की नहीं थी, उसमें मिर्जा साहब की भी थी। अच्छा भाईजान एक मिनट, अच्छा पूरे खानदान को वजीफा किस खुशी में दी जाती थी? अंग्रेजों की उनके एक मिनट भाई, अंग्रेजों को 12 जुलझना दिए थे। भाईजान प्लीज यार, ओ ये- भाई, ये आप हकीकत है, कहोगे जुलजला ये जुलजला हकीकत है, घोड़े जुलजला। दिए थे। पीर अस्कानी मतलब साहब, गाली ये सुनना हकीकत है। चाहते हो आप गाली सुनना चाहते हो? पीर साहब, हकीकत है, कसम से घोड़े दिए थे बरतानिया की। अरे भाई सही कह एक रहे हैं। मिनट, आप पीर साहब मैं इनको कुछ भी नहीं कहता, आप टेंशन ना ले, ये सही कह रहे आपका हैं। भरोसा नहीं कर सकता ना। नहीं, हमें ना, कुछ भी कहे, हम खामोशी से बात करेंगे। और गुस्सा यार मत कीजिए। मैं अगर इसको कुछ कहना होता तो इतनी देर में बर्दाश्त बस करता फिर हूँ। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, अच्छा भाई, आप बात देखें थोड़ा- ये सही कह रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों को घोड़े दिए थे और अपनी वफादारियां साबित की थी और बंदे भी भेजे थे, और जो था तो जो जंग थी उसको गदर बोला था और बड़ी गालियां निकाली थी उलमा को कि जो मतलब लोगों को कह रहे थे कि शरीक हो, तो उस खुशी में उनको एक लमसम अमाउंट मिली थी 700 रुपये। नहीं एक मिनट, ठीक है आमिर भाई, नजीर ये- भाई 140 करोड़ बनता है सोने के हिसाब से, मगर चले आप इस वक्त जो है ना 140 करोड़। हाँ, तो तेरी ना मेरी करके ना आप इसको आज के हिसाब से 7 करोड़ कर ले। आप 3 बंदे बात कर रहे हैं, अमर नजीर साहब, पीर साहब और शार्प शूटर। क्या मैं भी बात कर सकता हूँ? इजाजत है?
नहीं भाई, असल में बात सिर्फ मैं और रफीक शेख साहब कर रहे हैं। नहीं वो तो करेगा नहीं, बंदे हम सब किसी करेंगे बंदे को- आपसे और दूसरों से ना, वो तो करेगा नहीं अभी शेख साहब ने आपने अकेले को फंसाया हुआ है। रफीक शेख साहब को कौन फंसा रहा है यार, अकबर खान साहब? नहीं बात ये है कि अगर ये इतनी बड़ी रकम वापस थी गई, वो जो तो मिर्जा बात साहब करेंगे के अभी। वालिद साहब को मिलती थी, तो वो मिर्जा साहब के वालिद साहब भी तो एक महीने में खर्च नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब है उनके पास बहुत पैसा था, किताबों के लिए उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे फिर। ये चलो पूरे टाक खानदान मास्टर की साहब रकम तुसी भी थी। शुरू हो जाओ, तुसी भी किसी शुरू हो एक जाओ, बंदे तुसी भी की तिन्ने नहीं थी। बोलो जी। ना ये बाप की पेंशन थी ना दादे की, पूरे खानदान की रकम। आमिर नजीर भाई, आप हफीज भाई से बात कर रहे हैं और आप दोनों आप बात कर नहीं पा रहे, तो आप बंदा बदल लें। नहीं बात मैं कर लूंगा, अगर आप बीच में कोई बंदा ना बोले तो मैं बात कर लूंगा, मुझे तो कोई चलो मसला नहीं करें, है, चलें, मुझे जल्दी आप होती है। टाक मास्टर साहब से बात करें जी। टाक आमिर मास्टर भाई साहब। मैं बीच में बोलूंगा क्योंकि मुझे समझना है ना, वो हफीज साहब तो जुलजले के पीछे लगा हुआ है, जुलजला जुलजला तो जुलजला अकबर भाई ने भी समझना है ना। नहीं क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैंने भी समझना है, मुझे ना, ना। मैं कंफ्यूजन हमने में तो पड़ गया समझना हूँ है, कि हमने इतना जुलजला पैसा उनके जुलजला का पास क्या आता करना है था, भाई? वो तो फिर जुलजला उन्होंने जुलजला लगा किताबों हुआ के है। लिए पैसे क्यों मांगे? एक मिनट आमिर भाई, ये जरा थोड़ा सा आराम से मुझे पहले बताइए और अपनी बात को भूलिए नहीं। पूरे खानदान का ये वजीफा था आप कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, यही कहा आपने? यानी हाँ पूरे जी, पूरे खानदान जरूर। हाँ, मिर्जा साहब के वालिद, चचा, दादा तक, चचा इनके, वालिद इनके, और आगे उनकी औलाद, उनको सबको, पूरी फैमिली को ये मिलते थे पैसे। ये जरूर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तब मिला ना, खानदान को तो नहीं मिलता। जो काम हाँ। कर रहे हो उनको मिलता है ना। हाँ लेकिन उनकी उस दौर में, मेरी देखिए ना बात सुनो, उस दौर में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी, वो क्या देखकर किस तरह की उनको लोगों को देती थी सहूलत, ये उस दौर की गवर्नमेंट के अपने। आज तो वह एक बंदा नौकरी करता है 25 साल, तो उसको पेंशन लगा देते हैं बस उस बंदे के लिए, वो मर जाता है उसकी बेवा के नाम लग जाती है। ये आज की गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, उस दौर की जो 1864 की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो और थी। मतलब मैं यही समझा था कि पेंशन जिस तरह आजकल है, मतलब ये नहीं था, उनकी पॉलिसी कुछ और थी। कुछ और थे, हाँ जी, वो पूरे खानदान को सपोर्ट करने के लिए देते। यानी जिन्होंने अच्छा, भले जिन्होंने काम किया नहीं किया, कोई मुलाजिम लगा हुआ था नहीं लगा हुआ था, लेकिन चूंकि ये खानदान के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी खिदमात हैं, इसलिए सबको उन्होंने कुछ पैसे दे दिए। ये है मसला। जी जी, चले आमिर नजीर भाई, ऐसा करें कि एक मिनट। हफीज शेख ठीक है, हो गया। हफीज शेख जो है वो बात नहीं करना 131 चाहते आपसे टॉपिक पर। तो ये है Sì, कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप preciso, मुझसे बात quasi करें। 181, era 181. Oggi controllo. फायदा ये होगा कि आखिर में मैं आपकी हाँ में हाँ Oggi era मिला दूंगा। 181. Se non mi sbaglio, ieri era 180. Però quello che ho visto qua era lì, sul peso era uguale. Sì, sì. Prego. हाँ जी, क्या बोला जी अपना? मैं ये कह रहा हूँ आमिर नजीर भाई कि वो हफीज से आपकी बात नहीं हो पा रही, आप मुझसे कर लें, आपको ये फायदा होगा कि आखिर में मैं आपकी हाँ में हाँ भी मिला दूंगा। आप बात तो शुरू करें ना। 700 की एवेल्यूएशन जो है वो आप करने आगे चलते हैं। हाँ, अपना टाक मास्टर साहब, गुजारिश ये है, मैं अपनों में भी हूँ बदनाम और बेगानों में भी हूँ बदनाम, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो सच है वो लोगों के सामने आए। मुझे क्या दिलचस्पी है कि मैं झूठे इल्ज़ामात लगाऊं उन पर, ऐसे जिसके लिए ना कोई करीना मौजूद है ना कोई नस मौजूद है, मैं ऐसे इल्ज़ाम लगा के मुझे क्या लेना यार उनसे, जितनी बात है। अगर आप अपनों में और बुराइयों में सब में बदनाम हैं तो फिर नकारा है खुदा समझे इसको पब्लिक की। हाँ, ये नकारा है खुदा, मैं जानता हूँ कि ये जिस चीज़ की दलील होती है ना, वो मुझे पता है जिस चीज़ की दलील होती है। जब बंदा अपनों में भी बदनाम हो, बेगानों में बदनाम हो ना, तो वो जिस चीज़ की दलील होती है वो भी मुझे पता है। लेकिन मैं बहरहाल, मेरा फोकस इस बात पर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बयान करना चाहता हूँ और सच को प्रिवेल करवाना चाहता हूँ, इससे बढ़कर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। तो सच के रास्ते पर आगे चलें, तो सच बयान करें और थोड़ी सी मदद करें कि 700 रुपया उस दौर में, अगर उसको, क्योंकि सोने की कीमत मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा एक जैसी रहती है,
सोने की कीमत बता दें, 1864 में हिंदुस्तान में कितने रुपए का तोला सोना था? भाई मैंने बताया ना 140 करोड़ हो गए। कितना? 140 करोड़ 140 करोड़ रुपया बनता है। सोने के हिसाब से। हाँ जी। नहीं टाग मास्टर साहब, आप गलत हिसाब कर रहे हैं। 140 करोड़ नहीं बनता। कितना बनता है आप बता दें, कितना बनता है आप बता दें। मैं कहता हूँ इसका मैंने जितना भी तो वैल्यू वो तो करना बता है रहा करके। तकरीबन 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? आमिर नजीर भाई आप इससे मुतफिक हैं? नहीं पप्पू मलिक दे परले दर्जे दा अनपढ़ ते जाहिल है। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਲੇਗਾ। ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ 1864 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? 700 ਰੁਪਇਆ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1864 ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਤੋਲੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬੇਦਰ ਜਾਣਦਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 1864 ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ हिंदुस्तान? बस ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਲਾ ਦਿਓ प्लीज। यार अभी मैं 5 मिनट में बताता हूँ ये एक्यूरेट। अभी आप बात जारी रखें। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। 1864 ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰ ਭਾਈ 3 ਲੱਖ ਤੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਦੀ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ? ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਚਲੋ 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਬ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ 19 ਤੋਲਾ 19 ਤੋਲੇ ਬਣਦਾ 19 ਤੋਲੇ 19 ਤੋਲੇ ਜੀ, ਤੇ 19 ਚਲੋ 20 ਕਰੋ, 20 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। सारे सुनो ये बंदे ने जनाब 19 करोड़ 64 लाख 53,259 रुपए 15 पैसे। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇਗਾ? बस ये कढ़ लेने। तुसी 1964 की सोने की कीमत दसी है, ये दसिया वो दसिया, मैं सिर्फ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। सुनो तो सही ना अजमत साहब ज़रा ठहर जाओ। 700 रुपए की वैल्यू, नट सोना और नट एनीथिंग, 700 रुपए की वैल्यू 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इकाई दहाई जरा गिनना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 19 करोड़ 64 लाख 53,259 रुपए 15 पैसे बन गए। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਰਗੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, क्यों मिर्जा साहब ਨੂੰ ਮਰਵਾਓਗੇ? एक मिनट पप्पू भाई, बात यह है कि जो 700 रुपए की वैल्यू है वो मैंने बता दी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो अपनी वैल्यू बता दें, आमिर नज़ीर अपनी वैल्यू बता दें और इससे आगे चलें। पाक मास्टर साहब 35 तोले सोना उस वक्त बनता था, और आज पाकिस्तान में 35 तोले सोने की कीमत तो तकरीबन 96-97 लाख रुपया है।
आजकल। चलो ये हो गया 96-97 लाख, आगे चले। अमर भाई लुबे लबाब है वे मेरे 1.5 करोड़ पे रह जाओ। 1.5 करोड़ हो गया, आगे चले आमिर भाई। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम है। चलो जी रफ आइडिया, मेरा ख्याल है 95-96 लाख में तुसी 1 करोड़ रुपया समझ लो। 1 करोड़ रुपया अज अगर कोई बंदा 1 करोड़ रुपया लैके ते लाहौर लुधियाने अमृतसर चंडीगढ़ के विचकार निकल जाए, ना उत्थे मोटरसाइकिल होवे, ना उत्थे कार होवे BMW खरीदण वास्ते, ना उत्थे बड़े 5 स्टार होटल होण, उत्थे जो कुछ है सी 1864 विच ओ बयान करो, ओनू तुसी 1 करोड़ रुपया बंदे नू दे देवो। इन्हू कहो भी ए ओ गलियां ने, ए ओ बाजार ने, इन्हां च ओ चीज़ां ने जिहड़ियां 1864 च पईयां सन। अज तो चीज़ां नहीं है ना, तुसी ठीक हो गया, आगे चलो। चीज़ां उन्हां चीज़ां नू इस्तेमाल करदियां होयां 1 करोड़ रुपया किन्ने दिनां च 2 बंदे खत्म करनगे, ए हुण असां तरतीब कढनी। नहीं समझ आई गल? 2 बंदे दिनां दे विच, हाँ सवाल ये है कि किन्ने दिनां दे विच ओ 1 करोड़ रुपए 2 मुंडे जड़े ने वो खर्च करनगे, जदों कि फैसिलिटी बहुत घट सी। टाक मास्टर साहब एक बात सुन लीजिए जो जमात के रिकॉर्ड में भी मौजूद है, वो जो साथ उनका कजन था, यार आप बात कर लें तो क्या मैं बात कर लेता हूं। चाचे का लड़का मिर्जा साहब को धोखा देके पैसे लेके गायब हो गया था। धोखा देके, मैं ये धोखे की बात हो ही नहीं रही यार। आप नहीं तो जब 2 बंदे क्यों कह रहे हैं? मैं एक बंदे के साथ जाऊं, हमारे पास आप बात करना चाहते बात हैं, इंसाफ की ये करनी है। नहीं आप बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक वजाहत करके फिर उसके बाद नहीं मैं बात करता। नहीं, तो अगर वजाहत 2 की बंदे जरूरत हैं, नहीं है ना। 2 बंदों के पास 1 करोड़ रुपया एक उनमें से लेके निकल गया। यार बात सुने, या तो आप बात करें तो या आप म्यूट लगा लें, चुप कर। ये झूठ क्यों बोलते हैं 2 बंदे? यार मैं हूं ना झूठ बुलाने के लिए, मैं उनसे झूठ बुलवा रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? जी जी जी, अपना नजीर भाई कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं थी जो अयाशी की हो, जिस तरह की आपने फरमाया ना। BMW थी, ना मर्सिडीज थी, बिग्गी वगैरह थी, और वो भी वैसे भी अयाशी के सामान बहुत कम थे। शराब खाने भी होंगे लेकिन वो भी जाहिर है कि 1 करोड़ की रेंज में तो नहीं आते ना, तो बहुत सस्ते होते हैं उस ज़माने में। अब आप बताएं कि आपका सवाल क्या है कि वो कहाँ खर्च किए। मैं बताता हूँ हाँ। कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ खर्च किए, मुझे अंदाज़ा नहीं है, आप बताएं। हाँ मैं बताने लगा। मैं कहता हूँ कि मैं मिर्ज़ा साहब का दुश्मन होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, मान लीजिए नहीं की, रंडीबाजी नहीं की, उन्होंने कोई थिएटर सिनेमा भी नहीं देखा उन पैसों से। उन्होंने उन पैसों को सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में सर्फ किया। खाने पीने में अगर खाने पीने में सर्फ करें तो वो 1 करोड़ रुपया, भाई मुस्बत इस्तेमाल तो यही हो सकता है ना, खाना पीना। हराम इस्तेमाल तो ये है कि आप रंडीबाजी करें, आप सिनेमा जाएं, आप कोई वारदात करें उससे, ये हराम इस्तेमाल। मैं कहता हूँ हलाल इस्तेमाल करें उस करोड़ रुपए को। अगर हलाल इस्तेमाल करें, जो कि खाने पीने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता हलाल इस्तेमाल, क्योंकि ज़ाहिर है कोई इस तरह की कोई बात है नहीं कि इन्होंने वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई प्लाट खरीदा, कोई 2 किलो ज़मीन बह ली, इस तरह का तो मामला नहीं है। तो वो 1 करोड़ रुपया हलाल इस्तेमाल करते हुए, जायज़ इस्तेमाल उसका अगर हो, खाना पीना, तो 1 करोड़ रुपया कितना टाइम चल सकता है? जी अस्कानी भाई, आप क्या कहते हैं कि वो जो 1 करोड़ रुपए है उन दोनों बच्चों ने कैसे खर्च किया? अस्कानी भाई आप हैं? अच्छा नवीद भाई, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं ये तमाम भाइयों से, हत्ता आमिर नज़ीर साहब से भी इख्तलाफ रखता हूँ इस मसले में, और मैंने शुरू से, मेरा ये गुमान है, मैंने बताया तो नहीं है लेकिन मेरा शुरू से गुमान है, चूँकि मैं इसलिए सवालात कर रहा था चूँकि ये पूरे ख़ानदान का था और मिर्ज़ा साहब सबको खुद खाना चाहते थे। ये खर्च नहीं हुए, कहीं पर खर्च नहीं हुए, खर्च करने वालों में से नहीं थे, तो इसने हड़प लिए और आगे आकर मतलब जमा किया, कुछ भी किया अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। पूरे खानदान का हक उन्होंने मारा। अच्छा पीर साहब ये भी बता दें, हड़प करने के बाद मारा या नहीं मारा? एक मिनट अकबर भाई, एक मिनट। इतने पैसे उन्होंने खर्च नहीं किए
अगर इतने पैसे वो खर्च करने वाले होते तो बाद में भी करते नहीं, बल्कि वो दुनियादार इंसान थे, दुनिया परस्त थे। तो उन्होंने सबके हक को मारा, सबके हक को मारा। और ये एक दो का दा हो सकता है उसको भी कुछ जो साथ का दिया होगा। बाकी मेरा यही गुमान है, रुझान अल्लाह गवाह है कि इतनी बड़े रकम को उन्होंने खर्च नहीं किया। उसने उस रकम को क्या किया, सबका हक मारा। और आगे भी आप देखते हैं ना अपने खानदान के हक मारने में वो बड़े तेज हैं। और भी कहानियां हैं। मेरा ये शुरू से ये रहा है और मैं पहली मर्तबा ये बता रहा हूँ। बाकी वल्लाह ओके जी। ओके, अभी नवीद भाई आप बताएं जरा कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस मामले में, कहाँ खर्च किए उन 2 बच्चों ने? अच्छा अकबर भाई आप बता दें, वो तो टांग मास्टर भाई नवीद साहब मौजूद नहीं है, मुझे 10 सेकंड दे। मैं पीर साहब की बात से एग्री करता हूँ। दूसरी बात ये मैं है, मौजूद हूँ, मैं सुन अच्छा रहा हूँ बातें। अमर भाई करोड़ तो 1.25 करोड़ कर लो, क्योंकि मैं 1.5 करोड़ आख्या सी बाबर मैर दे रेट नाल 1.25 करोड़ बनता है। करोड़ लिहाजा का मसला हल हो गया। मेरी गल कोई नहीं है बब्बू, ऐसा वाली गल चाह रही है, तू वेट कर, दोबारा बोलो तो मैं थल्ले ला दूंगा। हाँ जी, अपने नवीद भाई आपका क्या ख्याल है, क्या हुआ होगा? देखें नवीद भाई, वो जो ये इक़्तिबास है इस पे ये लिखा हुआ है कि वो उस वक्त तक वापस नहीं आया जब तक सारे पैसे ख़त्म नहीं हो गए। ठीक है, अब उसमें 4 महीने में रहा है, 4 महीनों का टाइम था। ये मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे जहन से निकल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। और यही बात देखें, इतनी बड़ी रकम फिर कहाँ पे खर्च हो सकती है? खाते अगर रहें वो रोज़ाना, अगर मतलब वो इसमें 10,000 रुपया भी खाएं खाने पीने में, तो फिर भी ख़त्म नहीं होना चाहिए 4 महीने में। इसका मतलब है अस्कानी भाई की बात तो आपने रद्द कर दी, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि वो खर्च जब तक खर्च नहीं हो वो वापस नहीं गए। अकबर भाई इक़्तिबास में लिखी अब आपकी बारी है। अकबर किसकी भाई बारी है? आप क्या? मेरी बारी है जी, मेरी बारी है। मैं ये कहता हूँ कि चलो 1 करोड़ लगाओ या 1.5 करोड़ लगाओ, अगर वो 2 खानदानों के लिए, चचा के लिए था और उनकी फैमिली के लिए था, तो फिर भी 50 लाख महीने के तो उनकी तरफ आते हैं ना। तो 50 लाख वो खर्च तो नहीं कर देते थे वो फैमिली 1 महीने में। अगर वो गाय का हिसाब लग रहा है कि वो 3-4 रुपए की आ जाती थी और घोड़े भी दिए अंग्रेजों को, तो वो फिर इतना पैसा जो मिर्जा साहब के वालिद साहब इतनी देर जिंदा रहे हैं, तो वो फिर उनके पास तो फिर बहुत पैसा था। तो उन्होंने फिर किताबों के लिए तो नहीं मांगना था, या फिर जब उन्होंने उनके वालिद साहब फोत हुए, उनको फिक्र पड़ी अपनी जरिया मुआश की, तो उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से, तो अल्लाह ने ऐलान किया बेकाफिन अब्दहू। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि फिर उन्होंने किताबों के लिए भी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे। चलें जी, आपकी बारी। जी आमिर नज़ीर भाई, आपने सुन लिया 3-4 लोगों की राय, अब आप क्या कहते हैं? गुजारिश ये है कि हर बंदा राय देने में तो हक रखता है, लेकिन अफसोस होता है जब कोई बंदा वो जहाँ पर लाश पड़ी हुई है वहाँ पर कई मारने की बजाय सज्जे खब्बे कई मारता है ना, तो अफसोस होता है कि यार लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। भाईजान, हमारा जो सवाल था वो बहुत वाजे था, उसमें गलती लगने का चांस ही कोई नहीं। अब जो पीर अस्कानी भाई ने बात की है वो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई है। खानदान पूरे का रुपया वो हड़प करना, यही हम कह रहे हैं। हड़प किया कैसे किया? यानी घर ला के दिया। अगर खानदान का हड़प करना चाहता था, ला के घर में बीवी को बच्चों को दिया होगा, बाप को दिया होगा। इस तरह का तो मामला नहीं है, वो तो घर आया ही नहीं। अपने पास भी, वो अपने पैसा पास भी रखा जा सकता है। अपने पास अगर रखा है और वो रकम अपने पास रख कर जाकर कोई जिंदगी में उससे उसको इस्तेमाल किया है, तो भी कोई सेंस बनती है कि भाई इस बंदे ने वारदात की थी, पैसे रखे हुए थे, उसको इस्तेमाल किया। अगर वो अपने पास नहीं रखा, जैसा कि बिल्कुल सही है कि नहीं रखा, क्योंकि कहीं जाकर खरीदी नहीं चीज, तो उड़ाया है वो पैसा। अकेले उड़ाया है या इमाम दीन के साथ मिलकर उड़ाया है। लेकिन वो पैसा अगर इमाम दीन के साथ मिलकर उड़ाया हो तो हड़प ही किया ना, हड़प ही किया ना खानदान का। हम कौन सी कोई अलग बात कर रहे हैं? वो क्या कोई बात करने लगा, हालांकि कोई मुझे समझ नहीं आई उनकी बात, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आरिक ने अपनी बात कर दी ना आमिर नज़ीर। अब आप जो है ना वो उस गड़े पर जो है जहां पर मुर्दा दफन है वहां पर कई मार दें। हाँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उस 1 करोड़ रुपए को इस्तेमाल किया जाए, और यकीनन इस्तेमाल हुआ है, अगर उससे कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी गई, ला के बाप के हाथ में, बीवी के हाथ में नहीं दिया गया,
तो उस बंदे ने हड़प किया है। हड़प कैसे किया? अकेले किया या दोस्त के साथ, कजन के साथ मिलकर किया, कर लिया हड़प। वो हड़प करने के लिए 1 करोड़ रुपया अगर वो 2 बंदे लेकर निकलते हैं आज की तारीख में, और वही जराए हैं तायुश के, तो वो जायज़ तरीके से वो 1 करोड़ रुपया ख़त्म करते हुए भाईजान साल गुजर सकते हैं, साल, महीने नहीं। 1864 से लेकर 1868 तक 4 साल तो घर से बाहर रहे हैं, और वो 4 साल सियालकोट में रहे हैं। 4 साल जो सियालकोट में रहे हैं वो उन्होंने, यानी जो वाकया है पेंशन से लेकर सियालकोट जाने तक का, वो तो छोटा सा पीरियड है। घर से वो पेंशन लेने गए हैं और उसके फौरन बाद ही वो सियालकोट पहुंच गए हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई महीना 20 दिन का वो पीरियड नज़र आ रहा है। महीना 20 दिन में वो जायज़ तरीके से 1 करोड़ रुपया ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। हलाल तरीके से वो इस्तेमाल किया हुआ पैसा, वो 1 करोड़ रुपया, वो 20 दिन, महीने में, 2 महीने में ख़त्म नहीं होता। उससे कोई ऐसी हरामकारी अगर की जाए कि वो पैसा जैसे पानी की तरह बहाया जाता है, जिस तरह कंजरियां नाच रही हैं, आप वहां पर उनके ऊपर जाके नोट फेंकने शुरू कर देते हैं। या तो ऐसे फेंकें कंजरियों के ऊपर पैसे, या फिर उसका कोई मतलब बदकारी के लिए इस्तेमाल करें सुबह शाम, और वो वहाँ पर रंडीबाजी भी होती थी, थिएटर वगैरह, उस पर भी। ये हराम माल में पैसा खर्च हो तो जल्दी जल्दी उड़ाया जा सकता है। हलाल तरीका, खाना पीना, लिबास पहनना उससे, और उससे अपनी जो है जिस्म की आराइश वगैरह करना, इससे हलाल तरीके से वो 1 करोड़ रुपया 4 सालों में नहीं ख़त्म होता। 4 साल में भी नहीं ख़त्म होता भाईजान। वो ख़त्म कैसे किया गया है? मैंने यही तो सवाल किया फी शेख साहब से कि अगर शार्प शूटर ने इल्ज़ाम लगाया है तो मैं कहता हूं कि शार्प शूटर के इल्ज़ाम को फेंको गड्ढे में। आप अपने इंसाफ से बता दो कि वो 1 करोड़ रुपया अगर 2 बंदे लेकर निकलते हैं तो वो कहाँ खर्च कर सकते हैं, सवाए इसके कि आप ये तस्लीम करें कि वो नाजायज़ तरीके से पैसा इस्तेमाल किया गया है, 2 नंबरी उसके साथ की गई है। या नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि कंजरियों के जाके कोठे पर वो वेलें दी गई हैं और वो पर्चियाँ जिस तरह ऊपर फेंकते हैं, ऐसे पैसे फेंके गए हैं, वरना वो पैसे ख़त्म हो ही नहीं सकते। खाने पीने से तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। इंसान के पेट की एक लिमिट है ना भाईजान, उससे ज्यादा तो वो उसमें डाल नहीं सकता। जी अमर नजीर साहब अस्सलाम वालेकुम। बात मुकम्मल कर लें। वालेकुम सलाम। अच्छा अमर नजीर साहब, जो मेरे पास प्राइस निकली है ना, वो निकली है 0.80 यार प्राइस का खुलासा हो गया है जी साहब, प्राइस का खुलासा हो गया है। मतलब 1 रुपया भी पूरा नहीं बनता। 0.80 है 1868 की, 1 रुपया भी पूरा नहीं है। 10 ग्राम की प्राइस है ये वाली, ठीक है। कितनी और इस वक्त कितनी मेरे चाहिए? 0.80 में 1 रुपया भी पूरा नहीं बनता। यानी हिंदुस्तानी 80 पैसे का तोला है। 80 पैसे का, अगर रुपए से नीचे करें, रुपए से नीचे पैसा आता है। हाँ 80 पैसे का। 15-20 रुपए का तोला था, 15-20 रुपए का तोला था। नहीं जी 15, मैं 18 रुपए का। अच्छा 1 मिनट ठहर जाइए, 1 मिनट हफीज शेख साहब, 1 मिनट ठहर जाइए। 18 रुपए और कुछ पैसे का 1926 के अंदर 18 रुपए और कुछ का 10 ग्राम तोला इंडिया के अंदर था। हाँ हाँ ये मुझे पता है, ये ठीक है। और 2011 के अंदर 26,400 रुपए का 10 ग्राम है। ये भी ठीक है। 1864 का निकालना था, निकालना तो था 1864 का। 1864 का जोन सा है वो है 80 पैसे, 0.80। ओए हो, ये तो करोड़ से बहुत ऊपर जाता है। कितने ये कितने तोले बना? 80 सेंट का या 80 जो पैसे होते हैं 80 पैसे का। हाँ 80 पैसे का अंदाजा लगा ले। 10 ग्राम की प्राइस है ये वाली, 10 ग्राम की, ठीक है। आप 700 रुपए पर तकसीम करें। 875 तोले, 875 तोले। जालिमों, काजी आ रहा है। 18 रुपए का तो 1926 में था, 18 रुपए और कुछ पैसे का तो 1926 में है। हाँ ये सीरतुल मेहदी का जब पहला एडिशन, दूसरा एडिशन छपा उसमें ये लिखा हुआ है 18 रुपए का कुछ समथिंग है। हाँ ये तो मेरे पास हिस्ट्री, मेरे पास पूरी वो पड़ी अभी निकाली है, पूरी 2011 तक की निकाली है मैंने। 2011 भाई हमने तो सोना, देखो भाई हमारे जो थे वो क्या नाम, माहिर मुआशियात, आपको कहा था सोने का कीमत निकालना है 1864 का। फिर वो टाक मास्टर साहब सही कह रहे थे ना, करोड़ों में।
आपने हमें सिर्फ 1 करोड़ बना के दे दिया। 875 तोले। अब तोला कितने का है? 3 लाख का। 3 लाख का। आमिर साहब ये मौका आमिर दे दो। नजीर, जी करें बात। आमिर भाई देखिए आमिर मैंने नजीर क्यों भाई ये कहा, बात ये है। मास्टर जी 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 मौका दीजिए। मैंने क्यों यूं कहा, देखें 26 करोड़ 5 लाख। अच्छा आप ये देखें 26 करोड़ इनका 5 लाख। ठीक है, वो शर्त भी तो इनका झगड़ा, अच्छा इनका झगड़ा था मोहम्मदीन से? नहीं नहीं, दोस्ती थी उस वक्त तो। हाँ बाद में झगड़ा था या नहीं? बाद में हुआ झगड़ा। हाँ, हुआ झगड़ा। खिलाफ लिखा हुआ मोहम्मदीन ने या नहीं? मामदीन ने इनके खिलाफ कोई खास नहीं लिखा, थोड़ा बहुत लिखा ही है। हाँ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। अब आप देखें, अगर ये बदकारी में किसी डांस वगैरह में करते तो ये बातें जरूर सामने आ जाती। वो कोई कच्ची गोली उन्होंने गोटी नहीं के लिए, बड़ा शातिर था, समझ रहे हैं? अगर इस तरह की कोई हरकत वो करते तो बाद में वो जब दावा करते वो लोग सामने आते तो कल का तो ये तुम्हारी हरकतें थी। ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि मामदीन अपना भी मुंह साथ काला करवाता और कहता कि मैं भी रंडीबाजी करता हूं। वो तो पीर बना हुआ था मामदीन, तो ये पीर बना, वो भी पीर बना हुआ था। एक मोहम्मदीन नहीं है, एक मोहम्मदीन नहीं है ना। नहीं, दो ही तो जहाँ हैं। पैसे नहीं, दो ये तो है, लेकिन जहां इन्होंने ये हरकतें की हैं वो तो मारूफ है ना। वो नहीं, तो जहां मारूफ है। इन्होंने कोई एक तो नहीं, निकलता। अगर ये चंडीगढ़ में मेरा तजिया जाकर देख लीजिए ना, वो गलत है लेकिन आप देख तो लीजिए। वो तो गलत है लेकिन आप देख लीजिए। मैं अल्लाह जानता है कि बिल्कुल सिद्ध के दिल से ये बात कर रहा हूँ। बात यह है, मैं गलत हो सकता हूँ, 100% गलत हूँ। तो मैंने जो सोचा कि इतनी बड़ी जो रकम है, मोहम्मदीन और मिर्जा जी ये इनके साथ पुष्ट मिल जाएं, ये इतने 2-4 महीनों में ख़त्म नहीं कर सकते, समझ रहे? वो ख़त्म होंगे भी नहीं। और उस वक्त ऐसी सहूलतें थी भी नहीं, वो कम ज़राए थे, कम चीज़, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बात सुनिए थोड़ी सी, अब मुझे भी इतनी देर से खामोश हूँ। इमाम दीन पैसे लेके, सुन लेना, इमाम दीन पैसे लेके गायब हो गया था ना भाई। आपकी बात तो चलेगी 10 घंटे, उसके बाद दूसरे की चलेगी, फिर आप मुझे कहेंगे तू बोलता है, तू किसी को बोलने नहीं देता। चलिए ठीक है, आप बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम दीन मिर्जा साहब को धोखा देके जब पेंशन के पैसे मिलकर गायब हो गया था और मिर्जा साहब कचहरी में नौकरी कर रहे थे, जेब में 700 रुपया था और मिर्जा साहब कचहरी में नौकरी करने लग गए, ये अकल बात तस्लीम करती है? ये बताइए, आप तब बताएंगे। इमाम दीन पैसे लेके गायब हो गया था मिर्जा साहब को ये धोखा देके। हाँ, इसका सबूत दें, इसका सबूत दें। इसका सबूत भी दे दूंगा मैं आपको। 700 रुपया लेकर और आप मुझे इस चीज का सबूत देंगे कि दोनों ने मिलकर एंड तक पैसे मुकम्मल खत्म किए, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। इमाम दीन तो कुछ दिन के बाद ही गायब हो गया था। मुझे ये नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं अभी सबूत देता हूँ, मैं अभी सबूत देता हूँ, अभी सबूत देता हूँ। आपके पास जो सबूत है वो ले आओ। 1 मिनट, मुझे ये बताएं, मिर्जा साहब की जेब में, खीसे में इतने पैसे थे, कचहरी में नौकरी करने की क्या जरूरत थी 2-4 रुपए? मैंने कब कहा कि सियालकोट जब गए तो खीसे में पैसे थे? मैंने तो कहा सियालकोट गए तो खाली आते। तो किधर गए वो पैसे? वो इमाम दीन लेके भाग गया ना। ओ भाई सबर। ओ भाई इमाम दीन कचहरी में नौकरी कर रहा। अगर तो मिर्जा साहब गायब हो जाते, बात सुने, अगर मिर्जा साहब गायब हो जाते और इमाम दीन कचहरी में नौकरी कर रहा होता तो आज आप लोग क्या कह रहे होते कि धोखा देके भाग गया थी? अब सुनेंगे। मैं सबूत पेश करता हूं वहीं से जहां से पहले मैंने इस बात का पहले सबूत पेश किया है कि ये रकम साहब कई उथे मारो जिथे मुर्दा दफन है, सज्जे खब्बे ना मारो जी। उत्थे ही मारन लगे हैं, जे मारन दिती जे विच बोलोगे तो फिर तो सारे बोलोगे तो समझ नहीं ना आएगी गल। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मैं उनकी ही किताब से ये साबित ना करूं कि वो पैसा जब तक खत्म नहीं हुआ इमाम दीन मिर्जा साहब के साथ रहा है। लो जी, मुफ्ती टट्टू पुत्र आ गया, से जा रहे हैं भाई। के हो गया, गल तो कर लेंदे करो, बिच ही बोल पैंदे सारे। उसी रिवायत में, जिस रिवायत में ये बात लिखी हुई है ना,
कि इमाम दीन मिर्जा साहब के पीछे गया, उसी रिवायत में ये बात लिखी हुई है कि वो मिर्जा साहब को लेकर इधर उधर घूमता रहा, मिर्जा साहब को लेकर साथ इधर उधर घूमता रहा और पैसा सारा उड़ा दिया, साथ लेकर उड़ाया है। जब दोनों चिड़त्थे हो गए हैं, फिर मिर्जा साहब सियालकोट की तरफ गए हैं, वो किसी और तरफ गया है। मिर्जा साहब ने बाद में बताया कि वो उसने चाय के काफले पर जाकर डाका डाला है। ये भी एक नई बात है जो आपने शायद पहले ना सुनी हो। कि जब वो 700 रुपया खत्म हो गया है, दोनों चिड़त्थे हो गए हैं, तो इमामदीन ने केले ने जाके डाका डाला है। मैं नहीं मानता कि इमामदीन केला जाके चाय के काफले पर डाका डालेगा। रकम तो आपकी जाया हुई है 700 रुपया, तो रिकवर तो आपने करना है वो 700 रुपया। जरूरत तो आपकी है कि आप डाका डालें। इमामदीन को क्या जरूरत ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, वो नहीं डाका डाल रहा था, मिर्जा साहब ने इसको कहा और डाका डाला। इमामदीन को जरूरत क्या है डाका डालने की? इमामदीन ने जिस तरह मिर्जा साहब को क्या जरूरत कचहरी में नौकरी करने की? फजूल बातें ना करें आमर जी साहब, फजूल बातें ना करें भाई। मेरी देख रहे हैं आप, मैं ये कितना डिफेंड कर रहे हैं ये, क्योंकि मिर्जा साहब इनके मुखालिफ हैं और ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये कह के जी इमामदीन को क्या जरूरत थी चाहे उधर डाका डालने की, मिर्जा साहब को जरूरत है। आप मुझे बता दें कि इमामदीन की क्या आपका मजबूरी बदल थी? यही से पता चलता है। इमामदीन आपका को बदल यही से नहीं जी, इमामदीन जमाती आदमी था। इनसे पूछें कि ये तो 700 रुपये हैं। अहमद शाह दुरानी जो है वो ईरान से आया है और मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में कितनी औरतों के साथ ज़िना किया है, कितने हीरे उठा के लेके गया है, कितना सोना लेके गया है। वो जो 20 लाख का इनके ऊपर तबादला वो मुसलमान का था, उसका वो बतौर मुसलमान कर सकता है ये सब, ये साबित कर दें कि उसने जो किया एक ठीक मिनट किया। सुनने तो दें, ये क्या कहना चाहते हैं, बात तो समझ आने दें। नहीं, दिल्ली के अंदर नादिर शाह ने जो किया था मुसलमानों के साथ, उसकी बात क्यों नहीं करते? अच्छा वो कर दें, इसको बंद कर दें, इस मौजू को बंद कर दें। नहीं तो सिखों का कर लें, सिक्का शाही का उसकी बात कर लें। सिक्का शाही में क्या हुआ था? इनकी बंद कर दें, मिर्जा साहब की बात बंद नहीं, कर दें। सिक्का शाही में मुसलमानों के साथ क्या हुआ था उसकी क्यों नहीं बात करते? जो भी हुआ है वो शुरू कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। नहीं, वो बड़े मामले हैं ना। अगर आपको ये बात बुरी लग रही है तो इसको छोड़ देते हैं भाईजान, वो शुरू कर लेते हैं, उससे वाली कौन सी बात है? नहीं, अगर वो भी नहीं तो मराठों का वो जो बहुरा आ जाए उसकी बात कर लो। भाई किसी एक बात पर खड़े हो जाएं, जो कहते हैं आप बातें हैं ना, उधर की बातें हैं। मिर्जा साहब की छोड़ देते हैं जिन्होंने इज्तिमाई तौर पे औरतों और बच्चों को उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी बात क्यों नहीं करते? हाँ ठीक है, उसको शुरू कर लेते हैं। अगर रबवे में या यहाँ यूके में वो शैंडी शाह और वो जो लुकमान है वो, या डॉक्टर अमर लगा हुआ है या डॉक्टर मुबशर लगा हुआ है, उनको छोड़ देते हैं। जो गैंग रेप वो कर रहे हैं मिलजुल कर, उसको छोड़ देते हैं, बड़ी बात कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। खुश हैं इस पर? अगर आपको इस बात से तकलीफ पहुंच रही है तो इसका चैप्टर बंद कर देते हैं भाईजान। वो जो आप कहते हैं वो शुरू कर लेते हैं। हद हो गई है यार। एक बात आपके सामने आ रही है, एक बंदा है, उसने दावा किया है मैं नबी पाक का ज़िल बरूज हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, मैं हदायत याफ्ता इमाम महदी हूँ। और उसकी किताब में खुद अपने बेटे ने ये लिखा हुआ है कि उसने 700 रुपया, कितने तोले सोना बताया यार? नीचे एक मिनट दोबारा बोलना, कितने तोले? 875 तोले सोना की रकम का पेंशन लेकर वो अपने कजन के साथ निकला है और घर वापस नहीं आया है, और कहता है ये इमाम महदी है, ये हदायत याफ्ता बा किरदार, लोग उंगली नहीं उठा सकते किरदार पर। ये दावे हैं, ये मैंने कहानी काट के लिखी है, अपने पास से सुना रहा हूं मैं। ये आपकी ही किताब में लिखी हुई है ना कि वो अपने चचाजाद भाई के साथ निकले हैं। साहब आपको मैंने पे एक सवाल पूछा था, मिर्जा बशीर करोड़ों रुपए की, आप मेरी बात सुने यार बात आप किसी को नहीं, आपकी बात गलत है। बशीरुद्दीन महमूद की हर बात हरफे कुरान है ना। और यार बशीरुद्दीन महमूद अहमद की बात हो तो वो अपने बाप के बारे में गलत लिखेगा, या बशीर अहमद एमए अपने बाप के बारे में गलत लिखेगा? उसने अपने बाप के बारे में ये गलत लिखा है कि वो नबी है। अगर उसकी वो बात सच्ची है नहीं, वो उसको नबी मानता है, दूसरा बेटा सुल्तान और फजल कुछ और मानता है। हमें इससे क्या लेना देना? वो क्या हम बात मिर्जा बशीरुद्दीन की कर रहे हैं, हम फजल मैं कह रहा हूँ कि वो क्या मानते हैं, इससे हमें क्या लेना देना? आपने भी साबित किया है कि बेटा अपने बाप के बारे में गलत बयानी नहीं करेगा, तो बेटा भाई अकीदा तो गलत हो सकता है,
और भाई कीदा तो गलत हो सकता है, ये तो वो सिर्फ बयान कर रहा है। आपके हिसाब से वो शख्स झूठ नहीं बोलता, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो बिल्कुल अगर ठीक कह रहा झूठ है, बोला आपको है, मानना पड़ेगा अगर मिर्जा उसने साहब झूठ नबी है। बोला है, हफीज शेख साहब यार बीच में शोर ना करें, अगर बीच में झूठ बोला है, अभी मेरी आपने बात तो जुमला सुने ना। किया है कि मिर्जा बशीरुद्दीन को क्या जरूरत पड़ी अपने बाप के बारे में झूठ बोलने की। ओके ठीक है जी, चोरी की है, मान लिया, उसने सही बोला है, बाप ने चोरी की, खा गया, हड़प कर गया, लेकिन वो ये भी सही कह रहा है कि वो नबी है, क्योंकि वो भाई कह रहा है। नबी होने का, मेरी बात नबी सुने नहीं, या यही है, झूठा हर मानने का, बात उसकी सच्ची है, मेरी उसकी बात हर तो सुन ले सच्ची है। शेख अहमद साहब, नजीर ऐसे साहब, ना करें। उस बेटे की अपने बाप के बारे में हर बात सच्ची है। पीर साहब अगर ये आप इनको बता मुझे दें। तंग करेंगे, मैं अब मेरी बात सुने, अगर आप बात नहीं करने आपको देंगे मैं अजहर साहब को नबी मानना पड़ेगा, क्योंकि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा है, और आप उसकी हर बात सच्ची मानते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि अजहर साहब नबी है। अगर आपने अच्छा मैंने अगर आपने बात नहीं करने हफीज देनी शेख तो साहब एक मुफ्ती चीज साहब, पूछनी है। जी मुफ्ती साहब, शेख आपसे साहब। बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी मेरी आपसे बात नहीं है, मेरी अहमद नजीर साहब से बात नहीं, हुई है। आप मैं ना ही तो आमिर नहीं, नजीर नहीं। साहब को बात करने दे रहे हैं, ना ही मुझे नहीं, करने दे रहे आप हैं, तो आपने आप करना अहमद नजीर क्या साहब की आप अहमद नजीर साहब की अम्बुला है? सुना और बने, आप उनको भी नहीं बोलने दे रहे, पर बोल रहे हैं वो, मैं उनको बात कर रहे और हैं, मुझे भी नहीं बोलने दे रहे। चक्कर क्या है, माजरा क्या है? आप अभी अकेले बीच खेलना में- चाह रहे हैं, मैंने अकेले नहीं खेलना चाह रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ उनकी हैं? बात, मैंने उनकी बात देखी क्या जी। करना चाह मुफ्ती रही साहब है? आपकी मेरी बात नहीं है। जब आप मुफ्ती साहब आप कहेंगे ना कि मिर्जा बशीरुद्दीन की हर बात ठीक है, वो जो अपने बाप के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, तो फिर उस मतलब बशीरुद्दीन महमूद की तो आपकी उसके साथ लगती है, तो बशीर अहमद एम के साथ भी लगती है। मेरी बात सुने, आपके साथ मेरी बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं बात बशीरा, कर रहा छोटा हूँ। बशीरा जो है उसका क्या रोल है? मैं आपके साथ उसके बात साथ नहीं कर उसकी रहा भी नहीं हूँ। मानते आप लोग? मुफ्ती साहब मैं आपके सीरत साथ बात मेहदी नहीं को कर रहा हूँ। मानते हैं कि नहीं? सीरत मेहदी मुफ्ती जो साहब उसने मैं लिखी आपसे छोटे बात बेटे नहीं ने, कर रहा हूँ। छोटे मुफ्ती साहब मैं बशीरे आपसे ने। बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। चलो बड़े बशीरे ने तो चलो कोई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो चलो बदकार मैं आदमी आपसे था। नहीं कर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे मैं बात आपसे नहीं कर रहा, हूँ। आप मुझसे नहीं कर, आप मुफ्ती साहब से नहीं कर रहे, मैं आपसे नहीं कर रहा। चलो जी, चलो बस खत्म होगी बात करें, ठीक है, खत्म ਉਹ होगी ਨਹੀਂ बात। ਆਮੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਤ ਭਾਈਓ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋੜੇ ਖੱਪ ਪੈਣ ਪਾਈ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੋੜੇ ਬਸ। ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਸੋੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਉਹ 700 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ 800 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ, ਲਾਹੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ BMW ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 1926 ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਅਸੀਂ 1864 ਦੀ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ और ਕੱਢਿਆ ਨੇ। 100 साल 70-80 साल पीछे जाओ। आमिर साहब, अच्छा। 920 रुपए 920 पाउंड का एक तोला यूके में अभी दिख रहा है। एक तोला 920 पाउंड का, 920 पाउंड, और जरबे करो 800 तो वो 8,05,000 पाउंड बनता है। 4 मकान इसके आते हैं, 4 मकान। सारी दुनिया घूम जाओ फिर भी नहीं मुकने। मैंने ये दावा किया है कि जो 1864 से लेकर 1868 तक 4 साल मिर्जा साहब घर से गायब रहे हैं ना, वो 4 साल अगर वो हलाल तरीके से उस पैसे को खाएं, पिएं, अपने जिस्म की आराइश के लिए अच्छा कपड़ा खरीदें, अच्छे जूते खरीदें, 4 सालों में भी नहीं खत्म होते। हरामकारी करें तो एक रात में भी खत्म हो सकते हैं, 2 रातों में भी खत्म हो सकते हैं, हफ्ते महीने में भी खत्म हो सकते हैं। जाके वो कंजरी के कोठे पर वो पर्चियां बना के 100 रुपए की उड़ाएं, उनके ऊपर फेंके तो उड़ा सकते हैं, सारी रकम भी फेंक सकते हैं एक ही दफा। हराम तरीके से उड़ा सकते हैं, हलाल तरीके से वो खत्म नहीं हो सकते। ये मैंने दावा किया। एक मेरा सवाल है आमिर साहब, और शायद मुफ्ती साहब भी हैं, अगर मुझे इजाजत हो। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, समझ नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ एक मिनट, अगर ब्लूटूथ वगैरह लाया तो उतार दे प्लीज। जी आमिर साहब, मुफ्ती साहब भी हैं। मैं एक सवाल है मेरा, ये जो इनकी पेंशन थी, ये 700 यूके के पाउंड थे उस वेले, यूनाइटेड किंगडम के पाउंड तो और रुपये,
तो वो पाउंड के बराबर थे उस वक्त। तो क्योंकि ये डीलिंग जो है सभी जो इंडिया में होती थी, ये रुपया इंडिया का ब्रिटिश रुपया और इंडिया का ब्रिटिश पाउंड बराबर थे। किसी ने मुझे बताया था कि ये जो 700 पाउंड पेंशन थी ना, क्योंकि इनके बाप जो थे इनके ख़ानदान के सरदार थे, तो ये इमाम दीन इनका चाचा भाई था, तो उसकी फैमिली का भी इसमें था। और क्योंकि ये तकसीम करते थे, ये हेड थे ना, इसका बाप जो है गुलाम मुर्तज़ा, इसको पेंशन इसके नाम पर थी। और इन 2-3